ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 6 ਰੋਜ਼ਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਵਟ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪत्ति ਯਾਨੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਵਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 6 ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਵਟ ਬਲਾਕ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ 1 ਤੇ 2 ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਜੋ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਮਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬਨਾਵਟ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ 7 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਮੰਮਾ। ਮੰਮੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 6 ਭਾਗ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਗ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਵਾਰ ਛੋਟੀ ਲੇਟਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਲਕੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਵ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 2 ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਡਬਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਬਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਧ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਚੌਥਾ ਭਾਗ, 5ਵੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਤੇ 6ਵੀਂ ਛੋਟੀ ਲੇਟਵੀਂ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਮੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਭਾਗ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਮੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਛੋਟੀ ਲੇਟਵੀਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੀ ਹਲਕੀ ਕਰਵ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ, ਜੋ ਮੱਧ ਭਾਗ ਤੋਂ 2 ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਭਾਗ ਹੈ, ਮੱਧ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਭਾਗ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਤੇ 6ਵਾਂ ਭਾਗ ਛੋਟੀ ਲੇਟਵੀਂ ਲਾਈਨ। ਛੋਟੀ ਲੇਟਵੀਂ ਲਾਈਨ ਹਲਕੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਨ ਜੋ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 2 ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ, ਡਬਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਮੱਧ ਤੱਕ ਆਏ, ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਛੋਟੀ ਲੇਟਵੀਂ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ, ਮੰਮਾ, ਸੱਸਾ ਤੇ ਐੜਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ 7 ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਮੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੀ ਆ, ਹੁਣ ਸੱਸੇ ਦੀ ਦੇਖੀਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਮੰਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੇਟਵੀਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਲੇਟਵੀਂ ਲਾਈਨ, ਹਲਕੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਨ, ਡਬਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 2 ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ, ਮੱਧ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੀ ਤੇ 5ਵੇਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ। ਆਓ ਸੱਸੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੀਏ। ਲੰਬੀ ਲੇਟਵੀਂ ਲਾਈਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਹਲਕੀ ਕਰਵ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਨ, ਡਬਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਸੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੱਧ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਆਏ, ਮੱਧ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਜਾਣੀ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੀ 5ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਸੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਸੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਮੰਮੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
अगे देखते हैं सैट 7 के अधीन अगला जिहड़ा अखर है अगला वर्ण है ऐड़ा। इस दे लई असीं 7 भाग वंड कीती है, तो 7 भागां दे लई एक्सप्लेन कर दिना कि छोटी लेटवीं लाइन का भाग आ गया, उस तरह हल्की गुलाई देनी, जो मध लाइन जो मध वाली लाइन आ वो तो 2 बिंदु हेठां तक कलम लैके आनी। बस ऐड़े की जिहड़ी बनतर है उहदे विच यही गल्लां देखण वालियां ने कि दूजे भाग की जिहड़ी गुड़ाई है वो मध लाइन तो 2 बिंदु हेठां तक, जिहड़ी इस तो बाद चौथे भाग की गुड़ाई आ वो मध लाइन तो 3 या 4 बिंदु हेठां तक लैके आनी है। इन्हां इंप्रैशनां दे नाल ही ऐड़े की असली जिहड़ी खूबसूरती आ वो निर्भर करती है इन्हां 2 इंप्रैशनां ते इन्हां गुड़ाइयां दे उपर। ते आओ देखिए इहनूं प्रैक्टिकली करके कि पहलां असीं छोटी लेटवीं लाइन लगाई, छोटी लेटवीं लाइन तो बाद हल्की गुलाई देना, जिहड़ा मध लाइन तो 2 बिंदु असीं हेठां तक कलम लैके जानी है। तो इस बिंदु तो गुलाई दिंदे होए 2 बिंदु मध लाइन तो 2 बिंदु हेठां तक उस ट्रैक ते वापस जाते हुए ते डबल इंप्रैशन दिंदे हुए मध लाइन ते पहुंच गए। मध लाइन तो उपर जाते हुए मध लाइन तो जिहड़ा उपर नूं जाना है वो उपर वाली लाइन तो असीं 1 बिंदु हेठां तक ही रहना है, उहदे नाल नहीं छूना। तो इत्थे तक जाते हुए तीजा भाग पूरा किया, फिर चौथे भाग दे लई हल्की करव विच लाइन लियाउंदे होए अखीर वाली लाइन तो 2 बिंदु उपर तक कलम लियाउणी, अखीर वाली लाइन तो 2 बिंदु उपर तक। इस बिंदु तो हल्की गुड़ाई दिंदे होए करव वाली लाइन लगाउंदे होए 2 बिंदु उत्ते तक कलम रखते हुए ते उसे ट्रैक ते वापस मुड़ते हुए डबल इंप्रैशन दिंदे हुए ते तिरछमी लाइन लगाउंदे हुए। पहलां ये सीधी लगाउंदे रहे हैं पर कुछ सालों तो जिहड़ी है तिरछमी लाइन लग रही है। इस तिरछमी लाइन नूं लगाउंदे हुए असीं जिहड़ी 6वें भाग की सीधी रेखा वा वो बनाउंदे आ। 6वें भाग की सीधी रेखा तो बाद 7वें भाग की छोटी लेटवीं रेखा। ऐड़े की बनतर साडे सामने आ, एक बार इहनूं हल्की जी दोहराई दईए। छोटी लेटवीं रेखा हल्की अंदर नूं करब वाली गुड़ाई दिंदे होए लाइन लगाई, डबल इंप्रैशन ते फिर उपर वाल नूं जांदे होए उपर वाली लाइन तो 1 बिंदु हेठां तक रहिंदे होए चौथे भाग की गुड़ाई जिहड़ी अंदर नूं करब देनी है करब वाली लाइन लगाउंदे होए डबल इंप्रैशन दिंदे होए ते तिरछमी गुड़ाई वाली लाइन लगाउंदे होए सीधी रेखा दे नाल जोड़िया ते सीधी रेखा बनाई। उस तो बाद साडे कोले 7वां भाग जानी छोटी लेटवीं रेखा। तो ऐड़े की बनतर साडे कोल है। तो ये सी सैट 7 दे 3 वर्ण मम्मा सस्सा ते ऐड़ा। इस तो बाद साडे कोले आ जांदा जी 8वां सैट। 8वें सैट दे लई असीं 2 अखरां दा अभ्यास करना, वो हैगा रारा ते हाहा। इस तो बाद इहदे नाल ही एक गग्गे का अभ्यास करांगे क्योंकि गग्गे की गुड़ाई भी रारे या हाहे दे वांग ही कवर की जाती है। सब तो पहला असीं देखते हैं सैट 8 के अधीन रारे नूं, जिहदे विच 3 भाग वंड रखी है। तो 3 भागों दे विच पहला भाग लंबी लेटवीं रेखा का आ गया। दूजे भाग की रेखा लगाउंदिआं अखीर वाली रेखा तो असीं 2 बिंदु उत्ते तक कलम नूं रोक लेना। इत्थे कलम रोक के इत्थों ही गुड़ाई देनी शुरू करनी है, जो अखीर वाली लाइन नूं छूंहदी होई मध लाइन तो 2 बिंदु हेठां तक कलम नूं रोक लेना। इत्थों फिर गुड़ाई दिंदे होए ते मध लाइन दे समानांतर चलदे होए दूसरे भाग नाल जोड़ देनी आ। ध्यान रखण वाली गल कि 2 बिंदु उपर तो गुलाई 2 बिंदु हेठां तो गुलाई ते ये जिहड़ी समानांतर लाइन जानी है ये मध वाली लाइन तो 2 बिंदु उत्ते तक जिहड़ा इस लाइन नूं रखना मध लाइन दे समानांतर लैके जाना। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो पहला लंबी लेटवीं लाइन, लंबी लेटवीं लाइन। उस तो बाद दूजे भाग दे लई सीधी रेखा जो असीं अखीर वाली लाइन तो 2 बिंदु उत्ते तक लिया के कलम नूं रोक दिंदे आ।
सीधी रेखा, 2 बिंदु उत्ते तक कलम नूं रोकिया तां जो असीं इत्थों ही गुड़ाई चकनी है, तो गुड़ाई है जिहड़ी ओह अखीर वाली लाइन नूं छूंहदी होई गुड़ाई दिंदे होए अखीर वाली मध्य वाली लाइन तो 2 बिंदु फिर हेठां तक असीं कलम नूं रोकिया, इत्थों फिर इसे बिंदु तो गुड़ाई दिंदे होए मध्य वाली लाइन तो 1 बिंदु या 2 बिंदु उत्ते तक जिहड़ी गुड़ाई आ ते समानांतर लाइन आ वो बनाउंदे जाना। गुड़ाई दित्ती, मध्य लाइन तो उत्ते गए ते समानांतर लाइन जिहड़ा तीजे भाग आ, तीजे भाग दी लाइन आ तो दूजे भाग नाल जोड़ दित्ती। सीधी रेखा, लंबी रेखा, इस ते रोक गुड़ाई दी शुरुआत, रोक गुड़ाई दी शुरुआत, सीधी रेखा। तो इन्हां तिन्नां भागां दे विच साडे कोले रारे दी जिहड़ी एक सुंदर बनतर साडे सामने आ जांदी है। इस तो बाद सैट 8 दे लई असीं वेखांगे अगला वर्ण है जिहड़ा हाहा। हाहा ते रारा ज़्यादा फर्क नहीं, बिल्कुल उही प्रोसैस सारा, उही भाग वंड, सिर्फ जिहड़ी अंदर नूं गुड़ाई दा मोड़ करके असीं छड्ड देना। बना के देखिए जी, सीधी रेखा, सीधी रेखा, कलम नूं रोकिया, गुड़ाई देनी शुरू की, इत्थे कलम नूं रोक के गुड़ाई देनी शुरू कर देनी है। कलम नूं रोकिया, गुड़ाई देनी शुरू की, अंदर नूं मोड़ कट्टिया ते इत्थे लिया के असीं हाहे दी जिहड़ी ये रेखा इत्थे बंद कर देनी है। सीधी रेखा, कलम दी रोक, गुड़ाई दा आरंभ, गुड़ाई, रोक, दूसरी गुड़ाई, मोड़ ते हाहे दी बनतर कंप्लीट। तो इन्हां तिन्नां भागां दे विच साडे कोले हाहे दी सुंदर बनतर साडे सामने आ जांदी है। हाहे तो बाद अगे देखिए जी असीं गग्गे नूं। गग्गे दी भाग वंड उहदा दायरा कुछ ज़्यादा इस करके जिहड़ा पहली गुड़ाई आ उहनूं पहलां देखिए कि उस तरह लंबी लेटवीं लाइन, दूजे भाग की रेखा लगाउंदियां अखीर वाली रेखा तो 2 बिंदु उपर तक उस तरह सारा प्रोसैस जिवें रारे ते हाहे ले कीता, आ भाग बनाता सीधी रेखा ते 4 भागां दे विच साडे कोले गग्गा बन जाएगा। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सीधी रेखा लगी, खड़मी रेखा, कलम रोकी, गुड़ाई आरंभी, अखीर लाइन टच किया, चोया, रुके, गुड़ाई शुरू की, मध्य लाइन तो उपर 2 बिंदु ते दूसरी वाली दूसरे भाग की सीधी रेखा नाल उसनूं मिला दिता। गुड़ाई, रोक, गुड़ाई, समानांतर गए, नाल मिला दिता ते चौथे भाग की सीधी रेखा। तो साडे कोले गग्गा तैयार हो जाता है। तो असीं क्रमवार मम्मा सस्सा ऐड़ा रारा हाहा ते गग्गा इन्हां 6 अखरां दा अभ्यास कर लिया सैट 8 के अधीन। ते अध्यापक साहबानां दे कोल भी वर्कशीटां दे प्रिंट आउट्स उपलब्ध ने, पूरने पे हुए ने, खाली रेखावां भी ने। तो आप जी ने ज़्यादा तो ज़्यादा अभ्यास करना ते उस अभ्यास तो बाद उस अभ्यास दीयां फोटोआं क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप दे विच शेयर करनियां। इस तो बाद अगे गल करते हैं सैट 9 बारे। तो सैट 9 दे विच सब तो पहला गंगा शब्द है जिहड़ा उहदे लई असीं बनतर वेखदे हां। 4 भाग रखे, पहला लंबी लेटवीं लाइन, दूसरे भाग की लाइन है जिहड़ी जे नूं 50% मन्निया सी तो इत्थे असीं 30% तक ये रेखा रखनी है। उस तो बाद तीजे भाग के लिए मध्य भाग के समानांतर रेखा जो भाग 1 वाली जिहड़ी रेखा वा वो तो 3 या 4 बिंदु पिछे रखते हुए ते इस बिंदु तो गुड़ाई दिंदे हुए, जिवें असीं फफा बनाया सी, गुड़ाई दिंदे हुए ते ये गुड़ाई है जिहड़ी अखीरी लाइन तो 2 बिंदु उत्ते तक रखनी है ते इत्थे एक वड्डी अख बनाउंदे हुए अखीरी लाइन नूं टच करना या छूना। प्रैक्टिकली बना के देखते हैं जी। गंगे दे लई सब तो पहला लंबी लेटवीं लाइन, उस तो बाद भाग दूजे दे लई
30% की जिहड़ी असीं रेखा रखी है उहनूं देखीए तो उहदे लई एक रेखा रख ली 30% तक मध्य वाली रेखा तो दूसरे भाग तो बाद तीजे भाग जिहड़ी मध्य लाइन के समानांतर असीं 3 या 4 बिंदु पिछे तक रखी इत्थों जिहड़ी गुलाई देनी आरंभ देनी है। गुलाई दिंदे होए इत्थे ज़्यादा गुलाई नहीं, इनू टेपर गुलाई दे विच असीं लैके आउणा। ये गुलाई दिंदे होए एक वड्डी अख बनाउणी, ये वड्डी अख बनाउंदे होए अखीर वाली लाइन नाल छूणा। इत्थे एक गल ध्यान रखनी है, जिहड़ी अखीर वाली लाइन आ उहदे तों जिहड़ी आ अख दी दूरी आ वो 1 या 2 बिंदु उत्ते तक असीं रखनी है। सीधी लाइन 30% तक लाइन, समानांतर लाइन ते गुलाई 3-4 पॉइंट पहला ही असीं रखते हुए कलम नूं गुलाई देनी आरंभी, वड्डी अख ते अखीर लाइन दे नाल उहनूं छू देना। उस तो बाद सैट 9 दे लई जिहड़ा दूसरा अखर है बब्बा, लंबी लेटवीं लाइन, फिर एक खड़वी सीधी रेखा, करव दिंदे हुए मध्य रेखा ते जां उस तो एक बिंदु उत्ते, रेखा दे उपर भी हो सकता है एक बिंदु उत्ते भी हो सकता है। तो एक करव दिंदे हुए खड़वी रेखा दे नाल जोड़ना। उस तो बाद उस ट्रैक ते वापस आउंदे होए या इत्थों ही कलम रखते हुए हल इत्थे करव या सीधी रेखा ही प्रैफर्ड है। तो इत्थे नोब इस चुंझ तक कलम लैके आनी, कलम चक्की ते इस नोब तो जिहड़ी आ 5वें भाग की गुड़ाई दिंदे हुए खड़वी रेखा दे नाल जोड़ना, पर इस बिंदु तो असीं 2 पॉइंट उत्ते तक रखना। तो साडे कोले बब्बा तैयार हो जाता है। सीधी रेखा, खड़वी रेखा, गुलाई रेखा, नोब, गुलाई नाल इहनूं जोड़िया। तो इन्हां 5 भागां विच बब्बे की बनतर साडे सामने आ जाती है। भाग 9 दे लई जिहड़ा अगला अखर करांगे झज्जा। 3 भागां दे विच तां इह झज्जा सारा गुलाइयां ते आधारित है, तो जिन्नियां सोहणियां इत्थे गुलाइयां होणगियां झज्जे की बनतर उन्नी सोहणी, उन्नी दिख सोहणी होएगी। तो सब तो पहला लंबी लेटवीं लाइन, फिर गुलाई जो मध्य भाग तो 2 बिंदु उत्ते तक रखी है, ये बड़ी गुलाई। तीजे भाग दे लई की है कि जिथे असीं दूजे भाग का शुरुआती बिंदु सी उहदी सेध नाल ही तीजे भाग का शुरुआती बिंदु रख लेना, यानी उस सेध तो ही तीजा भाग शुरू किया ते दूजे भाग की गुलाई नाल टच किया। गुलाई दिंदे हुए हेठां आए, अखीरी लाइन तो 3 बिंदु उत्ते रहिंदे हुए गुलाई दिंदे हुए बंद अख नाल हेठां आए, अखीर वाली लाइन नूं छुया, टच किया। बना के देखिए झज्जे नूं। लंबी लेटवीं लाइन, दूसरी गुलाई जो मध्य लाइन तो 2 बिंदु उत्ते तक रखांगे, फिर ये बिंदु के समानांतर आ वाली लाइन चक्की, तीसरे भाग की गुलाई अखीर लाइन तो 3 बिंदु उत्ते रहिंदे हुए अख ना बनाउंदे हुए ते अखीर लाइन नूं छूंदे हुए साडे कोले इन्हां 3 भागां दे विच झज्जा शब्द तैयार हो जाता है। झज्जे तो बाद अगे गल करते हैं नाणे दी। नाणे दे लई असीं 5 भाग रखे आ। लंबी लेटवीं लाइन, इत्थे 45 डिग्री का कोण ते मध्य लाइन तो 3 बिंदु उत्ते तक, फिर इत्थों 2 या 3 पॉइंट छड्डदे हुए एक सीधी रेखा 90 डिग्री ते उस बिंदु तो मध्य रेखा तो उत्ते तक की गुलाई दिंदे हुए एक नोब, एक चुंझ बनाई। इस चुंझ तो 5वें भाग की जिहड़ी गुलाई लाई जो अखीरी लाइन नूं छूंदी हुई इस रेखा के समानांतर जाके असीं उत्थे बंद कर दिंदे हां। तां इन्हां 5 भागां दे विच साडे कोले नाणे की बनतर आ जाती है। आओ बना के देखिए। सीधी रेखा 45 डिग्री ते जिहड़ी हल्की कर्व वाली लाइन लगाई है, उस तो बाद 2 या 3 बिंदु छड्डदे हुए सीधी रेखा जो मध्य लाइन तो 2 बिंदु हेठां तक गई है, फिर इसे बिंदु तो
ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੱਧ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨੋਬ ਚੁੰਝ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਚੁੰਝ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਜੋ ਅਖੀਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੂਹੰਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਊੜਾ। ਊੜੇ ਦੇ ਲਈ 3 ਭਾਗ ਆ ਅਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਲਾਈਆਂ 'ਤੇ ਊੜੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲਾ ਭਾਗ ਭੀੜਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ਲੇਟਵੀਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੱਤੇ ਵਾਂਗ ਗੁਲਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੱਧ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਭਾਗ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਹੇਠਲੇ ਅਖੀਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਲਮ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਊੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ, ਤੱਤੇ ਵਾਂਗ ਗੁਲਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਤੰਗ ਗੁਲਾਈ, ਉਸ ਗੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਖੀਰੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਛੋਹਣਾ, ਕਲਮ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਊੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ 9 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਯਾਨੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਊੜੇ ਵਾਲੀ ਬਣਤਰ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਲੰਬੀ ਲੇਟਵੀਂ ਲਾਈਨ, ਤੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਈ, ਮੱਧ ਭਾਗ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਸੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੁਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤੰਗ ਗੁਲਾਈ ਜੋ ਅਖੀਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੂਹੰਦੀ ਹੋਈ ਕਲਮ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ, ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਯਾਨੀ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਖਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।